we are start to study unit first of biology, that is diversity in the living world. Before study these chapters, we are know about some basic terms. First of all, biology. What is biology? Biology क्या है? Biology takes from two Greek word. Bio means life and logos means study. In simple word, we can say that biology is the science of life from living processes. We can easily differentiate living and non-living things. The living things which have some processes like respiration, reproduction, growth and development, sensation and metabolic processes at all. The description of living organism, including human being, began much later. Systematics and monumental description of life form brought in out of necessity detailed system of the identification, nomenclature and classification. In this unit, we study about identification and classification of plant and animal. This unit included chapter 1st, the living world, chapter 2nd, biological classification, chapter 3rd, plant kingdom and chapter 4, animal kingdom. Next, Ernst Mayr. Ernst Mayr is a German scientist born on 5th July 1904 in Kempten, Germany. Ernst Mayr, also known as the डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का डार्विन की उपाधि इनको दी गई थी, on their 80 years of career, they study on different topics like ornithology means science of bird or पक्षी विज्ञान, taxonomy means systematics biology, zoo geography, evolution and systematics. For their research and work, they got Bolzan Prize in 1998, International Prize for Biology in 1994, and Crafoord Prize in 1999. Now we are come on chapter 1st, the living world. How wonderful the living world, we can easily see diversity in life around us. हम अपने आसपास आसानी से ये डाइवर्सिटी देख सकते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, लिविंग वर्ड्स को जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि व्हाट इज़ लाइफ या व्हाट इज़ लिविंग. जीव क्या है या जीवन क्या है. व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, we have a lots of definition, but in general language or in simple language we can say the object exhibiting growth, development, reproduction, respiration, responsiveness and other characteristics of life are designated as living being. इस लिस्ट में हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी कह सकते हैं. मतलब वह ऑब्जेक्ट जिसमें रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जिसमें रेस्पिरेशन हो, जो किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करें, वो लिविंग है या वो उसमें लाइफ है. नेक्स्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. After cell division, every organism is grow and developed. सेल डिवीजन के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वेट एंड जो नंबर्स होते हैं उसमें इंक्रीजमेंट होती हैं. द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. इन एनिमल
ये जो ग्रो है सेल डिवीजन के थ्रू या सेल ग्रोथ के थ्रू, ये एक एज के बाद लिमिटेड हो जाती है, वेयर एज इन प्लांट ऐसे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, सैंड माउंट, जो रेत के टीले होते हैं वो भी ग्रो करते हैं. सो वी कैन से द ग्रोथ इज नॉट द ओनली character of livingness. Next one is reproduction. Reproduction means production of progeny similar to those of parent. अपने जैसे दूसरे जीव की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन है. Reproduction may be sexual, like in plant, in developed animal, mammals, vertebrates, cat, dogs, at all, and by asexual reproduction, such as in yeast by budding, in planaria by fission, by increasing number of cells, that is spore formation, and at all various processes of asexual reproduction. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे asexual reproduction होता है. Now we are come on the metabolic processes. All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size and function. जितने भी लिविंग बीइंग है वो बहुत सारे केमिकल से बने होते हैं. इन्हीं केमिकल का कन्वर्सेशन इन्हीं केमिकल का कन्वर्जन वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर आता है. ये एक लिविंग कैरेक्टर हो सकता है, बट सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं. मीन्स वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस वहाँ भी होते हैं. सो हम मेटाबॉलिज्म को सिर्फ लिविंग कैरेक्टर नहीं मान सकते. नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लाइफ फॉर्म का डेफिनेट कैरेक्टर है और कोई भी नॉन लिविंग के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. नेक्स्ट इज दैट रिएक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई. जितने भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं जस्ट लाइक टेम्परेचर, लाइट और केमिकल्स, उसके अपोज में जो स्टिमुलस है, जो उसके अपोज में जो रिएक्शंस देते हैं, इट इज आल्सो अ लिविंग कैरेक्टर. नाउ वी आर कम ऑन द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. जैव विविधता. अगर हम अपने आसपास देखें तो जीवों की बहुत सी किस्में हमें देखने को मिलेंगी, जैसे प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, reptiles, arthropods, fishes, and different types of plant, so on. Many of organisms which are not seen by naked eye, that is microorganism, like algae, some alga, few fungi, bacteria. वायरसेस को हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते, इस क्लास में नहीं रख सकते, बिकॉज वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो वी कैन सी अ रिच डाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी. Nowadays nearly 1.7 million to 1.8 million species are known or founded. In simple word, biodiversity is the variety and variability of life on the earth. अर्थ पे जो भी लाइफ फॉर्म की वेराइटीज है, जो भी वेरिएबिलिटी है, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ये वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, स्पीसीज लेवल पे हो सकता है और इन्वायरमेंटल लेवल पे हो सकता है. यह वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, इन्वायरमेंटल लेवल पे हो सकता है. सिंपल एग्जांपल इज डॉग. अगर हम देखेंगे कि वो डॉग जो हॉट टेम्परेचर रीजन में पाए जाते हैं, सच लाइक साउथ इंडिया एंड हम लोग के यहाँ पे उत्तर भारत में, उनके जो फर होते हैं वो कंपेरेटिवली स्मॉल साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू सदर्न जो होती हैं, जो
ठंडे प्रदेश में होती हैं, जो कोल्ड प्लेस पे पाए जाती हैं, उनके कंपेयर पे जो बाल होते हैं वो छोटे होते हैं। जस्ट लाइक जो हमारे यहाँ के इंडिजिनस ब्रीड है उनको देख सकते हैं, या फिर लेब्राडोर है, डॉबरमैन है, ये ऐसे डॉग्स हैं जो कि हॉट टेम्परेचर वाले जगह के हैं। और जर्मन शेफर्ड, रेट्रीवायर, हस्कीज, ये ऐसे डॉग हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर पे रहते हैं। ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वेराइटी एंड वेरिएशन इन लाइफ, study is tough. Hence, there is a need to standardize the naming of living organism. और वो ऑर्गेनिज्म फिर उसी नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किया जाए। For the simplification of study, a group of scientists establish a method to give a specific biological name टू एवरी ऑर्गेनिज्म। इसके लिए दो यूनियन बनाए गए थे, ICBN एंड ICZN। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये जितने भी प्लांट्स हैं उनके नेमिंग के लिए, उनके नॉमेनक्लेचर के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया। वेयर इज ICZN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल nomenclature is established for the study, labeling or identifying and nomenclature of the animals. There is two part of every biological name. First, the generic name, and second is there is two part of every biological name. First, the generic name, and the second is specific name. वह सिस्टम जिसमें प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, दो पार्ट होते हैं, उसे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। फर्स्ट इज जीनस नेम एंड सेकेंड इज स्पीसीज नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। हियर मैंगीफेरा इज अ जीनस एंड इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज। एज लाइक होमोसेपियंस, होमोसेपियंस ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है। होमो इसमें इंडिकेट करता है जीनस को, जबकि जो सेपियंस है वो इंडिकेट करता है स्पीसीज को। नाउ ये दोनों यूनियन ICBN एंड ICZN ने कुछ यूनिवर्सल रूल्स को बनाया जिसे फॉलो किया जाता है फॉर द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कुछ है नीचे। फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम जितने भी हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं और ये इटैलिक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। सेकेंड रूल, बायोलॉजिकल नेम्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकेंड पार्ट इज रिप्रेजेंट द स्पीसीज, मीन्स जाति। थर्ड, व्हेन बायोलॉजिकल नेम इज हैंड रिटेन, मैन्युस्क्रिप्ट, अगर वो हाथ से लिखे जाएंगे तो जीनस और स्पीसीज अलग अलग लिखा जाएगा। एंड अंडरलाइन विल बी मस्ट। लास्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस always start with a capital letter, whereas the species name is always be the small. Classification means वर्गीकरण। It is nearly impossible to study all the living organism. So एक ऐसा नियम बनाया गया जो कि इसे सिंप्लीफाई कर सके, सुटेबल कर सके स्टडी के लिए। इन अदर वर्ड वी कैन से क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ सिमिलर दे आर और ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स मैच टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट। सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन एनिमल एंड प्लांट के बीच का डिस्क्राइब कर रहे हैं हम यहाँ। एनिमल मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच लैक द क्लोरोप्लास्ट। एनिमल्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोप्लास्ट लैक है, जिसमें सेल वॉल का लैक है, जिसके सेल पे सेल वॉल नहीं पाई जाती, वो एनिमल्स हैं। जबकि जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल वॉल पाई जाती है, वो प्लांट है।
The process of classification is called taxonomy. क्लासिफिकेशन में भी जैसे मैमल्स एक क्लास है, मैमल्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच हैव मैमेरी ग्लैंड, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास मैमेरी ग्लैंड पाया जाए वो मैमल्स है. उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट जीनस में ब्रेक डाउन किया गया, जस्ट लाइक डॉग, कैट, फॉक्स, मंकी, चिपैंजी, ह्यूमन बीइंग एंड ऑल. The scientific term for these categories is taxa. Now we are come on the topic systematics. Systematics, the branch of biology that deals with classification, nomenclature and taxonomy. The word systematics is derived from a Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Systematics एक वर्ड जो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन. द वर्ड सिस्टेमा सबसे पहले लीनियस ने यूज किया था अपनी बुक के टाइटल के लिए, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर. द नेक्स्ट पार्ट that is taxonomic categories will be discussed on next lecture. Thank you.